Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 7, Research Methodology. Topic: Formulating Effective Questions. Now, the questionnaire depend on many questions, and also the interview depend on many questions, and these questions depend on wording and information. How you collect these information depend upon many factors like careful about the how you formulate the questions. It depend on way of make questions of the questionnaires. There are some consideration to keep in mind that how you can follow we can follow these steps, so that don't use ambiguous words or use the simple words. We always try to use the simple words and everyday language words, because not every person is high educated, or the all respondents are not highly educated. Then it is difficult to understand the questionnaires or the questions which you want to collect the information about that. Then care to use word for the respondent is simple and everyday language words. Like example, that average person understand that simple words and words and sentence, and that's a sentence. Now here they can, the book gave example: is anyone in your family is dipsomaniac? This is difficult word, many are not understand. Dipsomania, the main dipsomania mean is alcoholic, which use the alcoholic addicted by alcoholic drinks. Like if many are not understand dipsomania, then the respondent are not give the information about that question, about this question. Then then the researcher miss many important information on the base of use tough words in the questionnaire. Then the main reason is that make simple and everyday language words that respondent understand easy way, and that give a response without not understand the question. Now the second one, do not use ambiguous questions. You may contain many meaning of one words, and it difficult to respondent which meaning is used by the researcher for these words. Then it make difficult for respondent how he give the answer, or it is not possible to draw the conclusion from information. Then need simple question, use simple words, not ambiguous. Now they can give example, but example, I will give this example in Urdu according to my knowledge. अब अगर हम कोई भी इस तरह क्वेश्चन बनाए कि आप मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, यस नो आंसर देना। अब मैं वो क्वेश्चन ये मेल से तो करता हूँ, वो आंसर देना उसके लिए वैलिड है कि वो, क्योंकि उसमें से उसके पास एम्बिग्विटी नहीं आएगी, यस नो आंसर दे देगा, या
अब मैं फ़ीमेल से पूछूं, फ़ीमेल मुस्लिम से, कि आप क्या नमाज मस्जिद में पढ़ती हैं या नहीं, तो उसका आंसर क्या? अब वो सब का आंसर एक ही आएगा, नो। क्यों? वजह यह है कि वो वो एक्टिविटी नहीं कर सकती, तो देन हाउ ही कैन शी कैन सेलेक्ट यस। तो उसके लिए डिफ़िकल्टी है कि वो ये काम करे। देन एम्बिगुअस क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, या अब कोई इस तरह क्वेश्चन हो जिसके दो मीनिंग हो, एम्बिगुअस असल मतलब क्या, दो मीनिंग हो, और वो कौन सा मीनिंग फिर इस्तेमाल कर सकता हो। लाइक अब एम्बिगुअस का इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, आर यू सेटिस्फाइड विद योर कैंटीन, क्या आप कैंटीन से सेटिस्फाइड हो। अब इसमें आप कैंटीन, जो रिस्पोंडेंट है, आप रिस्पोंडेंट से किस चीज़ पे पूछ रहे हो, कि कैंटीन की खुराक से सेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड हो, कैंटीन के सर्विसेज से सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड हो, प्राइस से सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड हो, आप किस चीज़ से। ये आंसर अब एम्बिगुअस ही है, इस वजह से वो आंसर आपको आंसर नहीं मिल सकता। वो अब सेटिस्फाइड का आप अगर कहते कि आप सेटिस्फाइड हो क्वालिटी ऑफ मील से, या आप सेटिस्फाइड हो एल्टीट्यूड ऑफ स्टाफ से, तो आंसर यस नो, तो उसमें एम्बिगुइसी नहीं है उसमें। हाँ, अगर आप ये पूछते हो आर यू सेटिस्फाइड विद योर कैंटीन, क्या आप कैंटीन से सेटिस्फाइड हो, देन वो डिफ़िकल्ट होगा। इसी तरह now the next topic, do not ask double barrel question। अब डबल बैरल क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, या आप इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि वो टाइप किस चीज़ का हो। अब डबल बैरल क्वेश्चन का ये मतलब है कि एक ही क्वेश्चन में आप एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन या दो बात ही पूछनी है, तो उस वजह से भी फिर आंसर आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल सकती। तो वो क्या, लाइक हाउ ऑफ्टन एंड हाउ मच, आप पूछ रहे हो कि कितनी दफ़ा और कितना टाइम आप स्पेंड करते हो एक विज़िट पे। वो विज़िट हॉस्पिटल जाना है, तो आप हॉस्पिटल कितनी दफ़ा जाते हैं। अब दो पार्ट हैं इसके, कि आप अक्सर जाते हैं, अक्सर विज़िट करते हैं, और कितना टाइम गुजारते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट पार्ट के या सेकंड पार्ट के, तो आप अगर दोनों आंसर एक पार्ट में है, तो इसमें आपको आंसर वो मिल नहीं सकता। उसकी वजह से फिर आप एम्बिग्यूसी क्रिएट होती है। अब अगर इस तरह क्वेश्चन में जो अब टाइम और कितने दफ़ा आप विज़िट करते हो, फिर इसमें कुछ रिस्पोंडेंट आपको आंसर देते, वो फर्स्ट पार्ट के, द सेकंड कुछ देते आपको सेकंड पार्ट के, कुछ चांस था कि कुछ दोनों पार्ट के आंसर देते। तो इस वजह से फिर आप क्या स्पेसिफिक नहीं है, तो इस वजह से आपको फिर क्या टाइम लगता है कि वो वीक, मंथ या ईयर। अब क्वेश्चन, डज योर डिपार्टमेंट हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पॉलिसी फॉर रेडिकल राकल माइनॉरिटीज़ एंड वुमेंस बैली। अब इसने क्वेश्चन किया, तो इस क्वेश्चन में डबल मतलब है। एक तो किस चीज़ की रिक्रूटमेंट है, स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट, वो दो उस पॉपुलेशन में दो ग्रुप में डिवाइड हैं, वो वमेन और माइनॉरिटीज़ हैं। अब वो अगर आंसर यस का देता है, तो रिस्पोंडेंट डज नॉट, वो नेसेसरी नहीं है कि वो किस चीज़ का दोनों का जवाब दे, बल्कि वो एक ही का आंसर मिलता है आपको। इसी तरह लीडिंग क्वेश्चन अगर करते हो, तो अब आप जब क्वेश्चन
लीडिंग क्वेश्चन हो तो उसका स्ट्रक्चर, वर्डिंग, कंटेंट वो डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चनियर रिस्पोंडेंट इस पे डिसाइड करता है कि वो रिस्पांस इसी जजमेंट पे और इसी तरह उस जजमेंट की वजह से वो लीड करता है, आंसर देता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब एम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग इज़ नॉट इट, क्या ये इस तरह है, यानी स्मोक इज़ बैड, ये है यानी बुरा है यानी। अब इस तरह फर्स्ट आप अगर पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो या ये स्टेटमेंट पूछते हो, देन आपको क्या मिलेगा, वो सजेशन क्या है, वो इंक्रीज आता है किस चीज़ में, बैड स्मोकिंग की वजह से। ये अब डिसएग्री हो सकता है। अब ये जो अबाउ क्वेश्चन लिखे गए हैं, एम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग इज़ इट इज़ नॉट, अब ये क्या, ये असल क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये स्टेटमेंट है। इसी तरह स्टेटमेंट में अब सजेशन की जाती है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, स्मोकिंग बैड है, तो वो फील कर सकता है, वो एग्री भी हो सकता है, डिसएग्री भी हो सकता है। उसकी अब स्पेशल फीलिंग है, अगर वो अथॉरिटी रखता है और वो बता सकता है अपने राय, तो इस बेस पे भी हम फिर क्या कंट्रेरी होते हैं ट्रू पोजीशन के साथ। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि आप क्वेश्चन जो बेस करता है वो अब जो रिसर्चर है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, प्रीजम्पशन पे, कि जो भी रिस्पोंडेंट हमें रिस्पॉन्ड दे रहा है वो पर्टिकुलर कैटेगरी कैटेगरी क्या हो, और वो बेस किस चीज़ पे करता है, सम एजम्पशन पे करता है। अब उसका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सिगरेट डू यू स्मोक इन अ डे, व्हाट contraceptives to do use डू यू यूज़। अब दोनों क्वेश्चन क्या, हम इसके बारे में अब इन क्वेश्चन से पहले ही अगर वो स्मोकिंग नहीं करता या गलत एक्टिविटीज़ नहीं करता तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, तो इससे पहले बेहतर था कि आप कोई क्राइटेरिया रखते, उस पर इंक्वायरी करके आप उसके बाद क्वेश्चन करते, ना कि डायरेक्ट करते। इसी तरह हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो इंशाल्लाह ये हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।